Good morning, students. Today we will be discussing a topic called bryophytes. In order to make the lecture short, this will be only a general information, and then it will be continued on the next lecture. So now let us talk about bryophytes as such. See, bryophytes are called as amphibians of plant kingdom. This you must have studied in class 9th. They are called as amphibians of plant kingdom. The reason behind it is that they spend the greater part of their life very near to the water, or you can say they cannot complete their life cycle without the aid of water. They require water in order to complete their life cycle. Now they are certainly very small plants, but yes, they are more complex than algae, which you have already studied. They are more complex than algae. Now the whole plant body can be differentiated into root-like, stem-like and leaf-like structure. Remember, I am using the term like. That means they are not true root, stem or leaves. True root, stem or leaves present नहीं होते हैं इनमें. Now, what do you understand by the term true root, stem and leaf? True root, stem and leaves means vascular bundle should be present. That is, xylem and phloem should be present in true root, stem and leaves. Bryophytes में xylem और phloem नहीं present होते. कहने का simple मतलब है vascular bundles और xylem and phloem are not present in bryophytes. They are not present in bryophytes. Okay, so no vascular bundle is present. No vascular bundle is present, but morphologically you can differentiate the whole plant into root-like, stem-like and leaves-like structure. पूरे प्लांट को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है और ये लीव्स लाइक स्ट्रक्चर है. इसमें कोई दो राय नहीं है. आराम से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन उसको आप ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं कहेंगे. यू कैन नॉट कॉल इट एज ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स. ओके, नाउ another information about bryophytes is that life cycle consists of two phases. First one is gametophytic phase, and the second one is sporophytic phase. Gametophytic phase are haploid and sporophytic phase are diploid. Now let us talk about what is haploid and diploid. See, in case of haploid, the total number of chromosomes are half. For example, in case of human beings, we are diploid organism. The total number of chromosomes found in every cell will be 46, but total number of chromosomes found in our gamete cell, that is sperm and ovum, is 23. So we can say that our sperm and ovum are haploid, while rest of the cells which are present in the body are diploid. That is, जो somatic cells हैं, जैसे skin पे cells हैं, या लंग्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट हैं, या लिवर में भी जो प्रेजेंट हैं, उनमें तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच आर प्रेजेंट इन आवर स्पर्म्स एंड ओवम, दैट इज गैमीट सेल, विल बी 23 एंड दैट इज दे आर हैप्लॉइड. इनकी जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही फेजेस उसमें प्रेजेंट रहते हैं. यही वजह हमने यहाँ लिखा लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट देयर लाइफ साइकिल.
सी मोस्ट ऑफ देम आर क्रीपिंग ऑन द सबस्ट्रेटम। क्रीपिंग ऑन द सबस्ट्रेटम का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली सरफेस के ऊपर ग्रो करते हैं। और कुछ लोग, कुछ उनमें से प्रोस्ट्रेट भी होते हैं, यानी कि एरेक्ट हो जाते हैं। तो एरेक्ट फॉर्म भी प्रेजेंट है और हॉरिजॉन्टल जो ग्राउंड के ऊपर क्रीप करते हैं उस तरह के फॉर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं ब्रायोफाइट्स में। कुछ समय के बाद ये डिफ्रेंशिएट करके प्लांट बॉडी बनाते हैं और इनमें रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है रेजोइड्स, और ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सॉइल के अंदर जाते हैं। What is the work of rhizoids? They can draw minerals and water from the soil and can provide it to the plant part. Now इसमें ये देखिए लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, लेकिन इनकी पूरी बॉडी हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड का मतलब यह है इनमें जो सेल्स प्रेजेंट होंगे दे विल बी ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन देम। सो दैट इज कॉल्ड एज गैमेटोफिटिक फेज। ये देखिए क्रीपिंग स्टेज है, ये मल्टीप्लाई करके इसमें चेंजेस आते हैं और ये मल्टीप्लाई करके ग्रीन कलर का होता है, सॉइल के ऊपर ग्रो करता है लाइक अ मैट, एंड देन दे मल्टीप्लाई, माइटोसिस टेक्स प्लेस इन देम, दे फॉर्म अ प्लांट बॉडी consisting of rhizoid, stem and leaf-like structure. And then in between these leaf-like structure, they may have a antheridium, यानी कि sex organs, antheridium. And or even archegonium, flask-like structure is present, which is called as archegonium. Flask-like structure is present, which is called as archegonium. This is archegonium. This means that sexual organs are present in form of antheridium and archegonium. Antheridium is responsible for production of antherozoids. जिसको हम स्पर्म्स बोलते हैं उसको ब्रायोफाइट्स में एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं। एंड आर्चिगोनियम इज द सेक्सुअल ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एग। नाउ ड्यू टू स्प्लैशिंग ऑफ वाटर, ये पानी के बहुत पास पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स, तो पानी की वजह से एंथेरिडियम से जो एंथ्रोजॉइड बाहर निकलता है, it can come inside, it can enter inside the inside the archegonium and can fertilize the egg which is present in the archegonium. ये क्या करेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा एंथेरिडियम से और इसके बाद आर्चिगोनियम के अंदर चला जाएगा और आर्चिगोनियम में रखे हुए एग सेल को फर्टिलाइज कर देगा। तो फर्टिलाइज करेगा तो सबसे पहले क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट जो होता है वो आपको पता है, जाइगोट इज 2n। ये कितना है, 2n है, यानी कि डिप्लॉयड है। इसका मतलब गैमेटोफिटिक फेज यहीं खत्म हो गई। अब क्या शुरू होगी, स्पोरोफिटिक फेज। जाइगोट में तुरंत डिवीजन नहीं होता, जाइगोट डज नॉट अंडरगो डिवीजन और यू कैन से मियोसिस जस्ट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। बट क्या होता है, इसमें प्लांट लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करता है। अब आप देखिए ये कहाँ हो रहा है, ये आर्चिगोनियम में हो रहा है। आर्चिगोनियम के अंदर ये स्ट्रक्चर बन रहा है। इसका मतलब ये भी है जो स्पोरोफिटिक फेज है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, गैमेटोफिटिक फेज के ऊपर। तो यहाँ पे गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट हो जाता है। गैमेटोफिटिक फेज बिकम्स डोमिनेंट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब इसी जाइगोट से जो कि एक सिंगल सेल होता है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और ये 3 हिस्सों में होता है, फुट, सीटा and capsule. This is called as capsule. अब कैप्सूल में मियोसिस होता है, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन डिवीजन, जहां पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाए, आधा हो जाए। मियोसिस से बनते हैं स्पोर्स। इसका मतलब स्पोर्स क्या हो गए, हैप्लॉइड हो गए। स्पोर्स क्या हो गए, हैप्लॉइड। नाउ दिस इज द एंड ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। अब देखिए स्पोरोफिटिक जनरेशन कब शुरू हुई थी, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद।
जैसे ही जाइगोट फॉर्म हुआ स्पोरोफिटिक जनरेशन शुरू हुई। जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर से वो मल्टीपल सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ कंसिस्टिंग ऑफ फुट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर दोबारा मियोसिस हुई और क्या बना, स्पोर्स। अब ये स्पोर्स सॉइल में गिरने के बाद दे विल जर्मिनेट टू प्रोड्यूस दिस ग्रीन स्ट्रक्चर ओवर द सबस्ट्रेटम। फिर ये एक स्ट्रक्चर बनेगा, फिलामेंट्स जैसा आप दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर बनेगा और ये फिलामेंट्स जैसा स्ट्रक्चर फिर अगेन इट विल गिव राइज टू रिजोइड्स। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, जस्ट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर टू द फॉर्मेशन जस्ट बिफोर द जाइगोट, इट इज अ गैमेटोफिटिक फेज। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद थोड़ा सा ही बस स्पोरोफिटिक फेज है। यही वजह है हम ये कहते हैं कि ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट होता है। दैट इज द रीजन व्हाई वी से दैट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स गैमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट। तो यहाँ पे दोनों फेज होते हैं, गैमेटोफिटिक फेज भी होता है और स्पोरोफिटिक फेज भी होता है। Importance of bryophytes we will be discussing in our next lecture. Thank you very much. Have a nice day.